کی اہمیت ہے, جو ان کی تعلیمی اہمیت ہے, اس کا بھی ہم ایک طرح سے اعتراف کرتے چلتے ہیں. تو اسی کا اظہار شاید انجم صاحب نے اپنی تقریر میں کیا. آئیے مزید کچھ جاننے کے لیے پروفیسر رحمان مصور کے بارے میں ایک سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے اور یہ سپاس نامہ محترم عاصم پیرزادہ صاحب نے لکھا ہے, لیکن سنائیں گے انس فیضی صاحب. انس فیضی صاحب سے گزارش کروں گا اور عاصم پیرزادہ صاحب سے گزارش کروں گا, تو یہ سپاس نامہ پیش کیا جانا ہے تو آپ پہلے سے ہی اگر اسٹیج پر آ جائیں تو اچھا ہے. سپاس نامہ پڑھنے کے بعد ان کی خدمت میں پیش کیا جائے. سنیے گا جب یہ لڑتے ہیں آپس میں عاصم صاحب اور رحمان صاحب, لیکن مطلب ادبی گفتگو ہوتی ہے اور کئی بار تو لگتا ہے کہ اب شاید یہ بات چیت نہیں کریں گے, یہ ان کی بات چیت بند ہو جائے گی, پھر یہ ملنے لگتے ہیں. تو یہی تو انسان کی خوبی ہے. اور ایک دوسرے کو مطلب یہ القاب و آداب سے بھی نوازتے ہیں, جو تو وہ تو الگ باتیں ہیں, وہ خاص محفلوں میں ہوتی ہیں. تو یہ محبت ہوتی ہے. شیخ سعدی نے کہا تھا کہ اچھے دوست کی پہچان یہ کہ دوست سے ہی اگر وہ دکھائی دے جائے تو وہ گالیاں دی جائے, وہ گالیاں سنیں یا وہ آپ کو گالی دے. مقصد یہاں گالی سے وہ گالی میں یہ کہ وہ کچھ بھی کہہ سکے آپ کو. تو یہ اس طرح کے دوست ہیں دونوں. تو انس فیضی صاحب یہ سپاس نامہ پڑھیں گے اور ڈاکٹر صاحب کے فن اور ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو نکل کر سامنے آئیں. جو ہے کہنے لگے کہ بڑی گاڑی اردو ہے. میں نے کہا حضرت دوستی بھی بڑی گاڑی ہے. اس پر کبھی بات ہوگی عاصم صاحب اور مصور صاحب کا تعلق ہے, لیکن یہ تحریر بہت مزیدار ہے اور دوست ہونے کے باوجود بہت احتیاط سے کام لیتے ہوئے بہت ایمانداری کے ساتھ یہ تحریر عاصم پیرزادہ صاحب نے لکھی ہے. ہدیہ سپاس بخدمت محترم پروفیسر رحمان مصور صاحب. پیپل فاؤنڈیشن اپنے معزز محترم مہمان پروفیسر رحمان مصور صاحب کا نہا خانہ دل سے پرتپاک خیر مقدم کرتی ہے اور آپ کی خدمت اقدس میں کمال خلوص و محبت, نیاز مندانہ احترام اور قلبی عقیدت کے ساتھ ہدیہ سپاس و امتنان پیش کرتی ہے. پروفیسر رحمان مصور زبان و ادب کی ان درخشاں اور تابندہ شخصیات میں شمار ہوتے ہیں جن کے علمی, ادبی اور فکری کارناموں کا احاطہ چند سطروں میں ممکن نہیں. ان کی علمی و ادبی خدمات کا دائرہ نہایت وسیع ہے. ہندی, اردو اور انگریزی ادب, فکشن, نثر و نظم, تنقید, تحقیق اور ترجمہ, ہر شعبے میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے روشن نقوش ثبت کیے ہیں. تنقید و تحقیق کے دشوار گزار میدان ہوں یا ترجمے کا باریک اور دقیق فن, ہر جگہ ان کی علمی بصیرت اور فنی مہارت نمایاں نظر آتی ہے. ڈاکٹر رحمان مصور کا تحقیقی مقالہ پاکستانی اردو کتھا ساہتیہ میں بھارتی متھک اپنی نوعیت کا ایک منفرد, اہم اور توجہ طلب علمی کارنامہ ہے, جس نے نہ صرف ان کی تحقیقی صلاحیتوں کو منوایا بلکہ زبانوں, تہذیبوں اور ادبی روایتوں کے درمیان ایک مضبوط پل بھی قائم کیا. یہی وجہ ہے کہ ان کی علمی و ادبی شناخت سرحدوں سے ماورا ہو کر وسیع حلقہ قارئین تک پہنچی اور انہیں اہل علم و ادب کے درمیان ایک معتبر مقام حاصل ہوا. علاوہ ازیں رحمان مصور صاحب کی تالیف, تدوین اور ترجمے سے متعلق متعدد کتابیں ملک اور بیرون ملک شائع ہو کر علمی ادبی حلقوں میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور اہل ذوق سے بھرپور داد و تحسین حاصل کر چکی ہیں. شاعری ایک وہبی عطیہ ہے, مگر اس عطیے کو فنی ریاضت, فکری گہرائی اور تخلیقی شعور کے ذریعے دوام بخشنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. پروفیسر رحمان مصور نے اپنے شعری سفر میں جس سنجیدگی, احساس اور فنی پختگی کا مظاہرہ کیا وہ ان کے اشعار میں پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے. میرے کمرے میں صرف کاغذ ہیں, میں چراغوں سے خوف کھاتا ہوں, اسے ہم پردوں دیتے ہیں مگر اڑنے نہیں دیتے, اسے ہم پردوں دیتے ہیں مگر اڑنے نہیں دیتے, ہماری بیٹی بلبل ہے مگر پنجرے میں رہتی. یہ اشعار محض شعری اظہار نہیں بلکہ ایک احساس, بیدار اور باوقار تخلیقی ذہن کی گواہی ہے.
उनकी शायरी ने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी अहले अदब की तवज्जो हासिल की है और उनकी अदबी शनाख्त को मजीद इस्तेकाम बख्शा है। आज के दौर में जब सोशल मीडिया और डिजिटल ज़राए ने शोहरत के पैमाने बदल दिए हैं और बाज़ औक़ात कम आया तख्लीक़ात भी गैर मामूली मकबूलियत हासिल कर लेती हैं, ऐसे माहौल में प्रोफेसर रहमान मुसव्विर ने दर्जनों किताबों के मुसन्निफ, मुअल्लिफ, मुदव्विन और मुतरजिम होने के बावजूद हमेशा वक़ार, मतानत और इल्मी संजीदगी को तरजीह दी। खुदनुमाई से गुरेज और इल्म से वाबस्तगी उनकी शख्सियत का नुमाया वस्फ है। यही वजह है कि वो इल्मी और अदबी दुनिया में एक मोतबर, बावकार और काबिल एहतराम नाम के तौर पर पहचाने जाते हैं। प्रोफेसर रहमान मुसव्विर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबा हिंदी में प्रोफेसर के मुअज़्ज़िज़ मनसब पर फाइज हैं और बरसों से नई नस्ल की फ़िक्री और अदबी तरबियत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। उनके तरबियत याफ्ता तलबा मुख्तलिफ मैदानों में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी इल्मी रोशनी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस एतबार से वो सिर्फ एक उस्ताद नहीं बल्कि एक मुअस्सर मुअल्लिम, रहनुमा और इल्मी रिवायत के अमीन हैं। मोहतरम प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब, पीपल फाउंडेशन एक बार फिर आपका समीम कल्ब से इस्तकबाल करती है और आपकी इल्मी, अदबी और तदरीसी खिदमात के एतराफ़ में ये हदिया सिपास पेश करना अपने लिए सआदत व इफ्तिखार का बाइस समझती है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला, इज्जत, रिफ़अत, मोहब्बत, एहतराम और मजीद इल्मी और अदबी कामरानियों से नवाजे और आपका फैज़ इल्म अदब आने वाली नस्लों तक पहुँचता रहे। आमीन। शुक्राना मोहब्बत और अकीदत के तौर पर ये शेर नज़र है। शुक्राना पेश है ये हुजूरी में आपकी, ए काश रोज आए ये मौसम बहार का। आमीन। और चूँकि आज आपका यौम विलादत है, चुनांचे इस मुबारक मौके पर गालिब के इस मारूफ शेर के साथ अपनी दुआओं का इजहार करते हैं। तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। सिपासनामा पेश किया जाएगा और अभिषेक तिवारी साहब से गुजारिश है कि आप भी आइए सिपासनामा पेश कर। ये भी मुआविनीन में शामिल इस प्रोग्राम के, शिमला से ताल्लुक़ है और बड़े करीबी लोगों में है प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब के। आइए अनस फैज़ी साहब, अभिषेक तिवारी साहब और फर्ज भाई आप भी आ जाइए। जामिया से प्रोफेसर मुकेश साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। हैदर अली साहब तशरीफ फरमा है, डॉक्टर हैदर अली साहब, उनका भी खैर मकदम है। डॉक्टर मनीष तोमर साहब और डॉक्टर अब्दुल हाशिम साहब और इनके पुराने दोस्त मनोज गुप्ता और कमर अब्बास साहब ये भी यहाँ मौजूद हैं। कमर अब्बास तो शेर भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा दूसरे हैं, अच्छा तो इनसे भी सुन लेंगे आज, वो अब्बास कमर है। अच्छा तो ये सब डॉक्टर साहब के दोस्तों में हैं, प्रोफेसर मुकेश, डॉक्टर हैदर अली, मनीष तोमर साहब, डॉक्टर मनीष तोमर, डॉक्टर अब्दुल हाशिम और मनोज गुप्ता और कमर अब्बास, आप सबका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। आइए हज़रात, बस कुछ तकरीरें होंगी थोड़ी सी और इसमें मुझसे शाहिद अंजुम साहब ने पहले भी कहा था, इसमें लिखा है कि मुझे कुछ बात करनी डॉक्टर साहब के बारे में, हालांकि मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ जिक्र भी कर चुका है। अर्ज़ करना चाहता हूँ, इजाज़त चाहते हो। देखिए ज़िंदगी में बाज़ लोग जो हैं वो किताबें लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो किताबों में लिखे जाते हैं। क्या कहने चाह रहा हूँ? कुछ लोग किताबें लिखते हैं और कुछ लोग किताबों में लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि अपने आप में किताब की मानंद होती हैं और उस किताब की तरह जिसके हर सफ़े पर, हर बाब में एक नई दास्तान होती है, हर बाब में एक नई कहानी होती है, हर सफ़े पर एक नया एहसास होता है और हर सतर में एक नया जज्बा या एक नई महक होती है। तो एक ऐसी किताब हमारे सामने मौजूद है जिसके नाम ये शाम हम कर रहे हैं और उस किताब का नाम है प्रोफेसर रहमान मुसव्विर।
क्या कहने, वाह ये किताब एक जिंदा किताब है जिसमें धड़कने हैं, जिसमें लफ्ज़ बोलते हैं, इनकी शख्सियत बोलती है। प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब के बारे में बहुत देर बात की जा सकती है। सहारनपुर के एक छोटे से कस्बे कैलाशपुर से एक शख्स अपना सफ़र करता है और दिल्ली जैसे बड़े शहर में आ जाता है। कैलाशपुर उनके नाम का हिस्सा था, पहले वो मुसव्विर कैलाशपुरी के नाम से लिखा करते थे, बहुत से लोग वाक़िफ़ हैं। तो ये जो कैलाशपुरी उनके नाम का हिस्सा था, तो एक ऐसी बस्ती के जहाँ से वो अपने साथ एक सादगी लेकर आए थे, वहाँ से अपने साथ बुजुर्गों की तहजीब लेकर आए थे। कैलाशपुर से वो अपने अंदर एक दयानत और एक ईमानदारी लेकर आए थे। अमूमन क्या होता है कि जब छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों की तरफ आते हैं, मेट्रोपॉलिटन्स में आते हैं, तो ये आदतें हैं बड़े शहरों की, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये सितम होता है बड़े शहरों का कि वो आने वाले से उसकी ज़बान छीन लेते हैं, उसका लिबास छीन लेते हैं, उसकी गुफ्तगू छीन लेते हैं, उसके अंदाज छीन लेते हैं। और जब वो शख्स अपने गांव जाता है तो उसका गांव उसको पहचानने से इनकार कर देता है, उसकी मट्टी उसे पहचान नहीं पाती। लेकिन प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब दिल्ली में ज़रूर आए, यहाँ तालीमी मराहिल भी उन्होंने तय किए और दिल्ली को उन्होंने कबूल भी किया। दिल्ली में वो दाखिल हुए, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी उनकी ये रही कि उन्होंने दिल्ली को अपने अंदर दाखिल नहीं होने दिया। तो जो कुछ वो लाए थे अपने यहाँ से, एक सादगी की दौलत, अपने बुजुर्गों की रवायत, उन्होंने उसको हमेशा जिंदा रखा है। दूसरी खूबी यह है कि इस सादगी उनकी शख्सियत का हिस्सा है। सिर्फ वो एक तरह जिसको कहा जाता है ज़ादे राह, जो सफ़र का सामान होता है, वो नहीं है कि जो कैलाशपुर से यहाँ तक पहुँचा, सहारनपुर से पहुँचा है, बल्कि सादगी इनकी शख्सियत का हिस्सा है। आप इनको देखिए, इनका लिबास सादा है, इनका अंदाज सादा है, इनकी गुफ्तगू सादा है, लेकिन ये सादगी आम सादगी नहीं है, बल्कि वो सादगी है कि सादगी में भी क़यामत की अदा होती है। अच्छे चेहरे को संवरने की ज़रूरत क्या है? तो ये वो सादगी है कि जहाँ किसी सजावट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जहाँ किसी ज़ेबाइश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब का हिस्सा है। इनके साथ चंद लम्हे गुजारिए तो अंदाज़ा होगा कि बज़ाहिर बहुत सादा, बहुत आम और एक बहुत डिसिप्लिन रखने वाला एक शख्स जो हमारे सामने मौजूद होता है, जब हम उससे मिलते हैं और चंद लम्हों की मुलाकात होती है रहमान मुसव्विर साहब से, तो उनकी शख्सियत की तहों में कई मौसम हमारे सामने खुलने लगते हैं, कई मौसम हमसे हमकलाम होने लगते हैं और कई ज़िंदगी कहानियाँ खुलकर हमारे सामने आ जाती है। और जब वो गुफ्तगू करते हैं तो उनके बहुत से ज़िंदगी के तजुर्बात भी हमें अपने हिसार में ले लेते हैं। और दूसरी खूबी ये है कि वो अपनी गुफ्तगू से, जो लोग जानते हैं रहमान मुसव्विर साहब को करीब से, वो जानते हैं कि वो अपनी गुफ्तगू से कभी अपना इल्म, जिस तरह जिक्र हुआ कि कितने मकालात हैं उनके, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो अदब है, जो यहाँ का कविता है, उसका किस तरह उन्होंने अध्ययन किया है, उसका मवाजना किया है, तुलना की है, तुलनात्मक अध्ययन किया है, बहुत सी किताबें उनकी है, उनका बायोडाटा देखिए तो भरा हुआ है। तो जब वो गुफ्तगू करते हैं तो अपने गुफ्तगू से कभी वो अपने इल्म का इजहार नहीं करते। मेरे जुमले पर गौर कीजिएगा, एक बात कहने जा रहा हूँ कि वो कभी बजाते खुद अपनी गुफ्तगू से अपनी इल्मियत का इजहार नहीं करते हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू उनके इल्म का इजहार कर देती है कि शख्स कितना पढ़ा लिखा है, कितना तालीम याफ्ता है। उनकी गुफ्तगू हमको बता देती है और गुफ्तगू से खुद जाहिर हो जाता है कि बरसों की रियासत लिए हुए एक शख्स जो है हमारे सामने मौजूद है। कई खूबियाँ हैं उनकी, यानी वो उस्ताद हैं, नाक़िद हैं, आलोचक हैं, समालोचक हैं, लेखक हैं, उन्होंने अनुवाद बहुत किया है, अनुवादक हैं, और सबसे बड़ी पहचान तो उनकी शायरी की। तो जब हम उनको देखते हैं तो उनके एक उस्ताद का वक़ार हमको नज़र आता है, जो गुरु की गरिमा हो सकती है, जो एक शिष्यों के साथ उनका व्यवहार हो सकता है, उसका जो एक डिसिप्लिन हो सकता है, वो हम देख सकते हैं उनके यहाँ। तो एक तरफ उस्ताद का वक़ार उनकी शख्सियत में झलकता है, दूसरी तरफ एक बड़ा बेतकल्लुफ़ दोस्त हमको प्रोफेसर रहमान मुसव्विर के अंदर नज़र आता है। उनके यहाँ अगर देखें, वो मुहक्किक हैं, उन्होंने बड़ी रिसर्च की है, इतने पेपर्स लिखे हैं, तो बड़ी बारीक बीनी, जिसको कहते हैं बड़ी बारीक नज़र होती है, वो उनके अंदर हमको
नज़र आती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो एक शायर का नर्म दिल हमारे सामने आ जाता है, जो सब कुछ खुला है, जहाँ पर सब कुछ खुली हुई शख्सियत नज़र आती है, वहाँ कोई उलझाव नहीं है, वहाँ कोई गिरह नहीं है जिसको खोलने की ज़रूरत है। तो ये उनकी शख्सियत के तजादात हैं, इसको कंट्राडिक्शंस हम कहते हैं। दूसरी बात बताऊँ कि उनके उसूल बहुत है, जो लोग जानते हैं, उनके जो शागिर्द हैं, उनके करीबी दोस्त बड़े उसूल पसंद इंसान हैं रहमान मुसव्विर साहब। तो उनके यहाँ उसूलों की सख्ती है, लेकिन रिश्तों की नज़ाकत भी है, रिश्तों को बहाल रखने की नरमी भी रहमान मुसव्विर साहब के अंदर है। तो मैं जिक्र कर रहा था कि बज़ाहिर जब हम उनकी खूबियाँ देखते हैं एक साथ, तो हमें अंदाज़ा होता है कि इनके यहाँ जो खूबियाँ हैं वो एक दूसरे की ज़िद हैं, एक दूसरे के विलोम हैं, लेकिन उसके दरमियान जो ये एक तवाज़ुन कायम करते हैं, उससे ये हम कह सकते हैं कि ये विरोधाभास नहीं है, ये कंट्राडिक्शंस नहीं है, ये तज़ादात नहीं है, बल्कि ये किसी एक दरिया के मुख्तलिफ धारे हैं जो अपने अपने अंदाज से उस ज़मीन को सैराब कर रहे हैं, या उस खित्ते में जो भी एक तरह से समझ लीजिए पेड़ पौधे हैं या वहाँ पर फूल पौधे हैं, उनको सैराब करने चले जाते हैं। मैंने कैलाशपुर से जिक्र शुरू किया था और दिल्ली तक का सफ़र मैंने बयान किया मुख्तसरन। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो मेहनतें की हैं, जो रियासतें की हैं, और जिस तरह से वो मकाम हासिल किया है जो बहुत से लोगों को हासिल नहीं होता है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी में वहाँ प्रोफेसर हैं और वहीं से उन्होंने तालीम हासिल की। तो कैलाशपुर से दिल्ली तक का ये सफ़र किसी कैलाश पर्वत की यात्रा से कम नहीं है, बल्कि उस पर्वत को सर किया है उन्होंने, कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत जो है एक पवित्र स्थान है, और मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कैलाश पर्वत की ये इस मुहिम को सर करना, जो इन्होंने पर्वतारोही का एक किरदार अदा किया है, वो अपने मतलब वो लोग गुनाहों को धुलवाने वहाँ जाते हैं, पापों का ये हमारा धार्मिक मामला है, लेकिन ये इन्होंने ये पर्वत इसलिए सर किया है कि इनको पता है कि वहाँ एक गंगा की धारा रहती है जिससे मानसरोवर बन जाता है। तो वो इनकी शख्सियत में वो मानसरोवर भी हम देखते हैं प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब की शख्सियत। तो ये कैलाश पर्वत को सर करने से कम नहीं है, और शफाफ पानी का झरना इनके अंदर एक मानसरोवर बना देता है। और आप इनको देखिएगा क्लासरूम में ये एक उस्ताद नजर आते हैं, लेकिन जब दोस्तों की महफिल में होते हैं तो वही संजीदा आदमी, वही एक डिसिप्लिन का आपकी पैरवी करने वाला शख्स महफिलों में कहकहे लगा रहा होता है, और कभी कभी खामोश हो जाता है, कभी कभी कोई तल्ख बात कर देता है। तो ये जब क्लासरूम में होते हैं तो वहाँ एक उस्ताद होते हैं, लेकिन जब दोस्तों के दरमियान होते हैं तो वहाँ सिर्फ एक बेतकल्लुफ़ दोस्त होते हैं। इनके बारे में बहुत सी बातें की जा सकती हैं, शायरी भी के बारे में बात करके ख़त्म करूँगा, लेकिन जो मैंने जिक्र किया था कि इनकी यहाँ जो सबसे बड़ी खूबी है, ये इनके परफेक्शन बहुत है, नफासत इनके यहाँ बहुत है, उसूल पसंदी भी इनके यहाँ है, और ये परफेक्शन जो है ये इंसान को तबाह कर देता है साहब। अरे मेरे अंदर भी याद है, हर चीज़ हो तो परफेक्ट हो, उसमें बहुत सी नौकरियाँ हाथ से निकल गई, उसमें बहुत से रिश्ते हाथ से निकल गए, बहुत सी किताबें अधूरी रह गई। तो ये परफेक्शनिस्ट होना यकीनन खसारे का सौदा है, लेकिन ये खूबी भी होती है, और शायद यही खूबी जो इनके जो उसूल हैं, ये सामने वाले से भी वही तवक्को करते हैं कि हर जगह मेयार हो, शख्सियत में मेयार हो, गुफ्तगू में भी मेयार हो, बातचीत में भी मेयार हो, मकाला लिखा जाए उसमें भी मेयार हो। तो जब मेयार का सवाल आता है तो उससे कोई समझौता नहीं करते हैं, फिर ये इनका लहजा इनके आसपास वाले लोगों को तल्ख लगने लगता है। देखो तलखी जो है, मैं बता दूं आपको, तलखी बहुत महज तलखी नहीं है, बल्कि आप लोग जो उनको करीब से जानते हैं कि वो तलखी जो है कि कब किस बात पर नागवारी का इजहार करने लगें, या कब कोई बात इनको नापसंद आए, या कब कहीं कोई उसूल टूटता हो देख कर इनकी भवें बन जाएँ, या इनके चेहरे पर नागवारी का एहसास हो, वो इसलिए होता है कि ये तलखी दरअसल चीज़ों की, अदब की, गुफ्तगू की और रिश्तों की मिठास को बचाने वाली तलखी है, जो उसको बचाने जाती है, जो इनकी खूबी है। आखिर में इनके कुछ शेर पढ़ते हुए बातें तो मैं बहुत कर सकता हूँ, मैं अपनी बात मुकम्मल करूँगा। एक शेर तो उनका बड़ा मशहूर जो अभी जिक्र हुआ कि हम उसको पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते, हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। ये दोस्तों शेर नहीं है, काम आम सा शेर नहीं है,
یہ دراصل ہماری پیشانیوں پر لگا ہوا ایک درپن ہے جو ہمارے سماج کی تصویر دکھا رہا ہے، جس کا اظہار رحمان مصور صاحب نے اپنے ایک شعر میں کیا ہے۔ دوسرا شعر جو ان کا یہ تھا کہ میرے کمرے میں صرف کاغذ ہیں، میں چراغوں سے خوف کھاتا ہوں۔ یہ ایک ایسا شعر ہے کہ بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ یہ کوئی خبر ہے، کوئی اطلاع ہے، کوئی سوچنا ہے کہ میرے کمرے میں کاغذ ہیں، اس لیے چراغوں سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن شعر پہ غور کیجئے تو یہ شعر صرف خبر نہیں ہے، صرف سوچنا نہیں ہے، صرف اطلاع نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ شاعر نے اپنے آپ کو، اپنے باطن کو، اپنے اندرون کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور یہ شاعر کا اپنا باطن نہیں بلکہ پورے معاشرے کا، ہمارے پورے سماج کا باطن ہے۔ یہ اندیشے بھی ہیں جو پورے عالمی اندیشے ہیں، آپ پورے انٹرنیشنل سینیریو دیکھیے تو یہ شعر دراصل رحمان مصور صاحب کا اس کا پرتبمب ہے جو آج کل پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ اس کا درد بھی ہے جو شاعری کرتا ہے، یہ اس کا درد بھی ہے جو بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جس کو قدم قدم پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ان کے اشعار بہت سے ہیں۔ میں ایک آدھ شعر اور پڑھ کر بس اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شعر تو میں نے بہت سارے نوٹ کیے تھے۔ تشریح بہت بری چیز ہے۔ ان شعروں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لفظوں کے نگہبان ہیں، معیار کے نگہبان ہیں اور رشتوں کے نگہبان ہیں۔ شعر ہاتھ ہی نہیں آ رہے ہیں، اس لیے میں بولتا چلا جا رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ان کی جو تلخی ہے، جو ان کی ناگواری ہے، جو جس پر میں بات کر رہا تھا، وہ پہلو آنا چاہیے۔ وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ نگہبان بھی ہیں، یہ پاسبان بھی ہیں، یہ مالی بھی ہیں ایک باغ، جہاں بہت سے طالب علم کی یہاں پرورش پاتے ہیں، وہ ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اچھے مالی کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چمن میں کوئی شاخ سوکھ جاتی ہے اس کو کاٹ دیتا ہے، اس کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ تاکہ باقی جو باغ کی رونق ہے وہ ختم نہ ہو۔ تو اس لیے یہ اگر ان کو کوئی بات ناپسند ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ رشتوں کی خوبصورتی برقرار رہے، کسی بھی چیز کا حسن برقرار رہے۔ تو میں اپنے بہت ہی محترم پروفیسر رحمان مصور صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ سلامت رہیں، بہت سی طرح میں